बस्तर का ये जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, ये दशहरा विश्व प्रसिद्ध कैसे है? विश्व प्रसिद्ध ऐसे है क्योंकि जब बस्तर का दशहरा होता है तो पूरे देश प्रदेश के साथ साथ विश्व के अलग अलग कोने से यहाँ पर्यटक आते हैं और स्पेशली दशहरे को देखने के लिए। आज हमारे साथ कुछ देश से बाहर के मेहमान बस्तर के दशहरे को देखने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। ये पूछ लूँगा तो बताएंगे कहाँ से आए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे अंग्रेज़ी थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा तो आती नहीं है, तो मैंने शकील भैया से मदद मांगी है जो हमारे और इनके बीच में बातचीत का एक जरिया बनेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। शकील भैया, सबसे पहले आप इनसे परिचय पूछें, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और क्या ये पहली दफ़े बस्तर आए हैं क्या? So he is asking about your name, your country, your profession, whether you visited first time India or before you already been here. So Hi, Jeff Butner from Milwaukee, Wisconsin, America, and I am a retired writer, and I've been to India several times. This is my 6th visit to India. Judy Hansen from Idaho, United States, retired public defender. This is my first time in India. Yes, thank you. मैम, Hi, I'm Millie Giuliani, and this is my husband, Dick Giuliani. We've been to India 4 times. This is our 4th time. And we love India very much. We're from Stockton, California, and a lot of doctors from India practice where we are, and we're really enjoying the festival. Hello, I'm Dick Giuliani. I'm from Stockton, California, USA. I'm a retired Superior Court judge from California, and as she said, this is our 4th trip to India. तो शकील भैया इनसे थोड़ा पूछें कि जैसे 6वीं बार आए हैं, फर्स्ट टाइम भी आए हैं, मैम फर्स्ट टाइम आई हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। बस्तर आए हैं तो बस्तर को लेके अमेरिका में जब थे तो क्या कभी सुनते थे कि बस्तर क्या है, या बस्तर के बारे में जो भ्रांतियां हैं या जो कुछ इसका जो स्याह सच्चाई है उसको लेके ये क्या सुने थे और क्या सोच कर यहाँ पर आए थे? So he is just asking, have you heard about the Bastar or what is happening inside the Bastar, insurgency about this war, Naxal wars? So you have heard it? I heard that there are some violence, and my friends warned me, don't come to India. Wait until it's quiet. It might be very dangerous, but I haven't found that to be so. It's been very friendly and beautiful. तो मतलब इन्होंने पहले सुना था और ये बोल रही थी इनके कि पति ने मना किया और इन्होंने फिर सर्च भी किया, बहुत सारे ऑपरेटर से बात भी की और उनके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश की, क्या वाकई में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है बस्तर के अंदर में। तो ऐसी कुछ बात नहीं थी, बहुत लोग फ्रेंडली हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत खुश हैं। इनसे पूछें कि बस्तर दशहरे के बारे में क्या सुना था इन्होंने, मैम से पूछें आप। So have you heard about this festival, Bastar Dashera? Not before we decided to come on this trip with Sudhakar, but we hadn't heard about the festival before. We were here during Diwali a couple of years ago, and then also the Ganesh festival few years before that, but not this one. इनका क्या इन्होंने सुना तो पहले दशहरा? Have you heard about this festival, Dashera? No, I got the same information that she did. We didn't find out about this until we got ये here. बता रहे हैं कि जो इंडिया के टूर ऑपरेटर हैं हमारे साथ सुधाकर सर हैं चेन्नई से, तो इनके माध्यम से इनको इस फेस्टिवल के बारे में किया और इन्होंने उनको इनविटेशन भेजा कि भाई आप इस फेस्टिवल को भी बस्तर का अटेंड करें। तब वो आप बस्तर के आदिवासियों का कल्चर क्या इन्होंने देखा और देखा तो उसको किस तरह से फील किया इन्होंने? एंड ऑल्सो ही इज आस्किंग अबाउट द ट्राइबल कल्चर. You are visiting several places, you have seen the tribals, so what is your opinion about these tribals people? Their lifestyle, art, It's craft? been amazing that they're still doing the things that they've done for hundreds and hundreds of years, and the items they're making are beautiful. I like to see that they're able to keep selling it and keep producing. Sir, your experience. Enjoyed visiting the tribals, and I hope their culture will be able to survive, because with modernization it gets very difficult. क्या कहा? ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी बहुत सारी जगहों में देख रहे हैं, यहाँ का क्राफ्ट बहुत रिच है और ये बरसों से कर रहे हैं, हज़ारों सालों से कर रहे हैं और आज तक वो बचा हुआ है।
मगर जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से हमें डर है कि कहीं ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, तो इसको आपको संभाल के रखना है। इन सभी से एक ओपिनियन लास्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा देर इनको परेशान नहीं करेंगे कि ये जो सोच कर आए थे, जैसा मैम ने बताया कि इनको बताया गया था कि मत जाओ बस्तर में, खतरा है, वहाँ वायलेंस है, वार चल रहा है, आने के बाद जो अनुभव लेके जा रहे हैं, तो इसे किस तरह से अमेरिका जैसे इलाके में किस तरह से फैलाएंगे, किस तरह से बताएंगे कि एक कंट्री है इंडिया जिसमें एक बस्तर एक छोटा सा रीजन है और जिस बस्तर को लेके भ्रांति है वो किस तरह से गलत है, कैसे क्या करेंगे? So before coming here, you have a lot of misconception about this region. So now you have experience now. So when you go back to America, so how you tell about your friends and your country persons that this land is very rich and beautiful? We take lots of photographs and then I'll show my friends and tell them you have to come here because it's beautiful and it's amazing and it's affordable. So many other places you can't buy anything, but it's very nice here. You get value. It's so very green. Everything is green and lovely, and you have waterfalls and nature and quiet sometimes. So just and very friendly people everywhere. तो ये कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं अमेरिका जाने के बाद? ये बोलें कि हम अभी आ रहे हैं तो हम फोटोग्राफ तो ले रहे हैं। नहीं, वो तो मैम ने कहा। हाँ, मैम, how you explain your people with photographs or with your blog or whatever? How do we communicate with our people? Yeah. Well, with our friends on Facebook. फेसबुक। We post pictures on Facebook. अच्छा, Yeah. आप कुछ कहना चाहेंगे बस्तर को लेकर? आपने एक जज होने के नाते रिटायर्ड Because you are जज, retired judge. So what's your opinion about the Bastar? About what? Bastar, this region. Oh, we've traveled all over the world, and the reason that we go different places is because we want to experience different cultures, the way people live and work and interact with one another and interact with us. And we've come to India more often than any other country because of the diversity here, and also because no matter where we go in India, the people are always friendly and welcoming, and we love the food, and we may very well be back for number 5, I would expect. भोजन यहाँ का अच्छा लगा, ये तो मैं समझ गया, हल्की फुल्की अंग्रेजी आती है, बाकी और क्या उन्होंने काफ़ी कुछ वो बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था काफ़ी शानदार था, और वो ये चाहते हैं कि सुधाकर जैसे जो लोग हैं यहाँ के टूर ऑपरेटर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बस्तर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तभी यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ सकेगा। बढ़ सकता है जी, और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ का ओपिनियन भी बदलेगा बाहर के लोगों के लिए। उसमें भी काफ़ी बदलाव आएंगे। मैंने कई दफ़े कहा है कि भाषा जो है, भावनाएं जो है, वो भाषा की मोहताज नहीं होती। क्या दिक्कत है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इनके चेहरों पे जो सुकून मैं देख रहा हूँ और इनके चेहरों पे जो मुस्कान मैं देख रहा हूँ, उस मुस्कान को देखकर इस बात का इल्म तो मुझे है कि बस्तर आने के बाद इनका अनुभव ज़रूर बदला है। एक मोहतरमा से हमारी जब बातचीत हुई और उन्होंने हल्की जो अंग्रेज़ी बताई, जो मुझे हल्की फुल्की समझ में आई कि बस्तर आने से पहले किस तरह से उनके चेहरे, उनके जानकारी में कई भ्रांतियाँ डाली गई थी बस्तर को लेकर। ये बात बेशक सच है कि बस्तर में नक्सलवाद का अतिक्रमण है कुछ इलाकों में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि नक्सलवाद के अलावा भी बस्तर की एक अलग पहचान है, जिसमें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खूबसूरती जो सबसे मुख्य है। और बस्तर का दशहरा तो अपने आप में अप्रतिम है, 600 वर्षों से चला आ रहा है, 75 दिनों तक मनाया जाता है। मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसा दशहरा कहीं नहीं मनाया जाता जो कि आदिवासी संस्कृति के साथ आदिवासियों के तमाम उपजातियों और जातियों को आपस में जोड़ता है, और उनके बिना बस्तर का दशहरा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। अब आप सोचिए कि कितनी खुशी की बात है कि जिस बस्तर को हमारे देश में नेगेटिव छवि के तौर पर जाना जाता है, हमारे देश से बाहर से आए हुए मेहमान भी यहाँ से एक अच्छी छवि लेकर लौट रहे हैं। बस्तर का दशहरा इतना खुशनुमा होता है कि जो भी यहाँ आता है यहाँ का हो जाता है। अब आप सोचिए कि अमेरिका जैसे क्षेत्र से भी लोग बस्तर आ रहे हैं तो केवल बस्तर के दशहरे को देखने, बस्तर की खूबसूरती को देखने और अपने मन में बसे उस नेगेटिव छवि को सुधारने के लिए, जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। अगर आपको लगे कि अमेरिकन जो लोग हैं इनसे बातचीत अच्छी रही, हालांकि ये बात सच है कि हमें दुभाषी की ज़रूरत पड़ी तो बातचीत में थोड़ी सी दूरियां हुई होंगी, लेकिन भावनाओं से आप कनेक्ट हो पाए होंगे। लगे कि इस बातचीत को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए
बस्तर की छवि को सुधारना चाहिए, बस्तर की खूबसूरती को निखार कर सबके सामने लाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।